Well, Jai Jhulelal and a very, very warm welcome and a good evening to all our viewers joining us from different parts of the country and the world. I am Lion Navdeep Nigam, the Vice President of Lions Club of Mumbai Soul, the Club Leo Advisor for Leo Club of Mumbai Soul, and the District Leo Advisor for Leo District 3231A3. Your host for the 571st episode of your favorite daily feature, the VSS show. Well, brought to you by Vishwa Sindhi Seva Sangam, powered by Property Anthem India Private Limited, and Lion Nirmal Jain through Khanvale Resort Silvassa. Also, ably supported by our partners OP Gurbani ji from Agra through Green Exim, the International Agro Export Corporation, and Lion Lata Avtani ma'am, the International President of the Women's Wing, the Vishwa Sindhi Seva Sangam from Dubai. With all the support of our lovely sponsors and our mentors' guidance, Dr. Raju Manwani, we are here with yet another exhilarating episode of the VSS show. Well, ladies and gentlemen, सबसे पहले तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आज ये शो होस्ट क्यों कर रहा हूँ. तो आपको मैं बता दूं कि हमारे मेंटोर और हमारे गाइड और इस शो के करता धरता लायन डॉक्टर राजू मनवानी आज सोल गोल्ड अवार्ड्स में बिजी हैं उसकी प्रिपरेशंस के लिए, इसलिए आज मैं आपके समक्ष हूँ. उनके शूज़ फिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं वो कोशिश भी नहीं करूँगा. अपनी तरफ से मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और आप लोगों को काफ़ी सीखने मिले. इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आप सारे सिंधी समाज का और विश्व सिंधी सेवा संगम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर एंकर करने का मौका मिले. सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु इज ट्यून्ड इन टुडे. और let us look at the list of guests that we have for tonight. Ladies and gentlemen, on the show tonight, we have two incredibly amazing, successful individuals who have not only excelled in their respective professions, but have also exemplified excellence to inspire their and the other generations to strive for the same. Both our guests today have been people who have tackled the challenges in life with their chin up and remained deep-rooted even after success followed their paths. Our first guest for the evening is a renowned yet spectacularly young nutritionist who has altered the lifestyles of many of her clients with exceptionally encouraging results. She is a fitness nutritionist and a founder of Q Slim Fitness Studio. On the academic front, she completed her MBA in the international marketing and subsequently specialized in the cardiac nutrition and clinical nutrition from Apollo Hospital. She has also completed her post-graduation in sports science and fitness nutrition from SNDT University, Mumbai. She's an individual who has successfully handled many camps and presentations in different corporate sectors, including banks, schools, elderly homes, nutrition institutes, and different housing societies. She's also popular with her articles and write-ups, which continue to be a part of various recognized newspapers and magazines like the Times of India, the Hindustan Times Mint, the Men's Health magazine, the Afternoon DC, the radio channels such as 92.7 FM, and websites like yahoo.com, healthmeup.com, and many more. She is also an integral content writer for numerous websites and has an acclaimed history of more than 13 years of satisfied clients in her profession. Ladies and gentlemen, it's an absolute privilege for me to call upon the supremely multifaceted and talented individual, Dr. Pallavi Srivastav. Hi, Navdeep. That was such a kind words from your side. Thank you so much. Well, firstly, Pallavi, firstly, a big thank you for taking time out and coming on the show. A big welcome to you on the show. It's my pleasure. It's definitely indeed my pleasure to be a part of this very VSS show. When Raju uncle asked me, and I was so fascinated with this whole thought of coming and because it seems very different. It's not about the regular what we speak on the diet, and it's more about your life and what challenges you faced and how you can I'm though very young, but whatever I can do a part of inspiring others. So it's definitely very special to me. So thank you so much for such kind words also. Well, I think you've been tremendously modest here with the expressions right now, because whilst making your profile, I totally could understand the amounts of accolades you've actually gotten at such a normal age, such a small age rather. Well, starting off, I think an interview should always should actually give insight to the viewers in terms of how a person is. Now, a lot of people know you as a very successful nutritionist, but I believe most of our viewers today would like to know a little bit more about the Pallavi that is as an individual. So tell us a little about your growing up days, and how did you actually take up nutritionist nutrition as a profession, because it's something which is a very different branch as compared to what people prefer in India. So tell us a little about yourself. Sure. So this basically started after I completed my 12th standard, and then I knew that
I wanted to get into a medical or a paramedical field. That I was very sure from a very young age, because we have a lot of doctors in our family, and all my parents, both my parents are professionals. So I was very sure of that. But I would like to specially mention Dr. Madhu Chopra, who guided me and showed me this way that this field is very upcoming. Even though when I started and जब हम join कर रहे थे तो उस समय इतना नहीं था awareness in India also or in Mumbai, that of the nutrition course, and people were not so conscious that time, which is very opposite of what we have today. So she inspired me, and she told me, and she kept me going, and she said, no, Pallavi, you must take this course, and it's going to really do very well in the future. And people are going to, jitna hum natural khate hain, jo diet hum karte hain, people look at diet only कि हमको कम खाना है और हमको नहीं खाने को मिलेगा, सिर्फ फ्रूट्स होगा, सिर्फ सैलड्स होगा. बट दिस होल थिंग, what inspired me to become a clinical nutritionist is that how do we treat a medical condition just with the help of normal food or natural food. So that is what kept me going, and I joined this course in SNDT. I completed that graduation. Then I did some specializations, because when I saw that I was able to help a lot of people in terms of improving their medical conditions, making them lose weight, making them more fitter, तो वो जो मुझे success उस terms में मिल रही थी, satisfaction जो मिल रहा था, and that is what I think made me do all those specializations. And of course my parents, my family, they're all very professionals. My father is a lawyer, my mom is a teacher, my brother is a lawyer. So they were all very professionals, and they always told me कि आपको अपने दम पे खड़े रहना है, you have to be independent, you have to do something on your own. So I think that got me that inspiration कि मुझे individually कुछ करना है for sure. So I think that is what drove me, and medical field always kept that edge, kept that pulling me towards its side. So I think that is what got me to do this course. That's really nice to hear, actually. I mean, spectacularly clear about what you wanted to do. So generally yes. Profession related clarity काफी कम होती है, because I can speak for myself. आज की तारीख में भी काफी confusion रहता है कि हाँ जो career चुना है वो सही है. But moving on, I think Pallavi, when you actually take up a field like nutrition जो आपने लिया, and sort of a very bold step, as you already mentioned. उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी. आज की तारीख में भी मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने के बाद भी अवेयरनेस इज प्रीटी लो इवन टुडे, बिकॉज इट्स एन अपग्रोइंग फील्ड, इट्स प्रीटी मच एन अनटैप्ड मार्केट. तो व्हेन यू एक्चुअली लुक एट द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट यू केटर ऑन अ डेली बेसिस, कैसा लगता है आपको कि न्यूट्रिशन का जो प्रेजेंट सिनारियो इंडिया में है, या टियर 1 सिटीज़ में, स्पेशली मुंबई, जहाँ पर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, पीपल शुड एक्सपेक्ट पीपल टू बी अवेयर, किस तरीके का माहौल है, हाउ आर पीपल डूइंग थिंग्स, एंड ओवरऑल हेल्थ पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है इसका? So I think Navdeep, if I see, this is my 14th year of the practice, and if I go to see from the first year to the 14th year, there is a vast difference in terms of what people have understood food as. So आजकल, in fact, I would say the number of clients or patients I see, or the the questions which I get, there are people who want to know more. Google पे आज हम करते हैं तो बहुत सारे information मिल जाता है, but what people didn't used to realize before is कि वो Google करना किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम डायबिटीज़ भी बोले, एसिडिटी भी बोले, जो आज बहुत कॉमन हो गया है, गूगल करना और खुद के ऊपर अप्लाई करना, वो सबके लिए इट्स नॉट लाइक अ वन शू फिट फॉर ऑल काइंड ऑफ अ थिंग. सो अब आई वुड से अवेयरनेस इज मच बेटर, बट डेफिनेटली जो हमारा, आई ऑलवेज टेल ऑल माई क्लाइंट्स ऑल्सो, जो नेचुरल फूड या नेचर जो क्योर कर सकता है, वो एनी टैबलेट्स और मेडिसिन, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे हमको ज़रूरत उसकी पड़ जाती है कभी कभी, बट जो नेचुरल फूड क्योर कर सकता है उसका कोई बेनिफिट देयर इज नो कंपैरिजन. सो main important what I tell, I see a lot of even though not a major part of the young generation coming forward, but अब वो भी काफ़ी scope बढ़ा है, and people are getting aware. And when you start doing something like this at a younger age and getting that fitness कर रहे हैं, gym जा रहे हैं, सबको workout करना है, different workout में enroll करते हैं, diet के लिए आते हैं, they understand कि हमको अब अपनी health को prioritize करना है. Especially with COVID, I think जब आया, इतना immunity पे hit हुआ है काफ़ी लोगों को, the lung ki capacity, so many things which we saw, so many cardiac issues happening now. So I think now people are increasingly getting aware. They want to take a step forward to improve their health, but I feel still it's a long way to go.
we're definitely a little better as compared to the other cities, but फिर भी I would say कि still a long way to go, but it has definitely improved over the period of these 14 years for sure. एब्सोल्युटली. एक बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि प्री कंसीव्ड नोशंस बहुत होते हैं, स्पेशली जब आपकी फील्ड होती है. तो जब इंसान न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है तो जनरली कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर चुका होता है. अपने ऊपर ऑलरेडी जो रिकमेंडेशंस होते हैं. आजकल इतने ऐप्स अवेलेबल हैं, इतने मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, इतने कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट करी जा सकती हैं अपने बॉडी के कॉम्पोजिशंस के हिसाब से. तो जब when you actually look at a new patient, जब कोई भी नया आता है आपके पास, तो सबसे पहला how do you have your mindset कि is it totally blank and you cater case to case, या एक particular algorithm है जो certain body types के लिए होता है और बाकी अलग टाइप की बॉडी टाइप्स के लिए दूसरे algorithms हैं, या कोई set approach है, या you have case to case basis पे आप cater करती हैं? So I'll tell you, Navdeep, that ये बहुत case to case vary करता है. There are so many cells in our body, so many tissues in our body कि हर body को, even if it's a very similar case. For example, if I have two patients with diabetes and acidity issue or blood pressure and diabetes issue, and these similar two cases also, एज ग्रुप भी अगर सेम है, तो उसके बावजूद बहुत फ़र्क होता है कि क्या चीज़ उनको सूट करेगी, क्या चीज़ इनको सूट करेगी. सो इट्स आई डोंट थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बीन एबल टू रिवर्स अ लॉट ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट्स एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स. आई वर्कड इन एशियन हार्ट हॉस्पिटल वेर इन हमने बहुत कार्डियक पेशेंट्स देखे, पोस्ट बाईपास सर्जरी, पोस्ट एंजियोप्लास्टी, ECG कैसे लेना है, ब्लड प्रेशर कैसे लेना है. सो यू नो व्हाट वी लर्न इन द कॉलेज, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना हॉस्पिटल सेटअप, उससे बहुत हमको वी हैव सीन द पेशेंट्स इन द वर्स्ट ऑफ द सिनेरियोज आल्सो एंड पीपल इंप्रूविंग आल्सो. सो उससे काफ़ी हमको कॉन्फिडेंस मिलता है. एंड व्हेन समबडी कम्स टू मी, आई टेक इट कम्प्लीटली एज अ न्यू केस, टेक डाउन देयर कंप्लीट हिस्ट्री, उनसे सारा माइनर डिटेल्स हम पूछते हैं, उनको छोटे छोटे इशूज़ हो रहे हैं उनको, सो हम जब एम्पथाइज करते हैं पेशेंट के साथ या क्लाइंट के साथ, एंड व्हेन आई टेल देम give them this confidence that no, I am going to change this for you, I am going to improve this for you. And when we do those blood tests, or फिर हम 3 months 2 months के बाद वापस repeat करते हैं, I show them, see, this is the difference what you have done. Of course I was guiding, but it's your achievement, इतना weight आपका कम हुआ. So I think उससे उनको जैसे every 10 days, like मेरा pattern ऐसा है कि हम 10 days में diet change करते हैं. So when they come back to me in 10 days, they get their sugar readings, we check their blood pressure, their weight, and that gives them the happiness कि हाँ मुझे improvement हुआ है. So there's no fix, ऐसा कुछ pattern नहीं है working. Every body type is very different. In fact, I would say every nutritionist working pattern is also different. सबकी diet बनाने का तरीका, उनका patient को या client को देखने का या deal करने का तरीका भी काफ़ी अलग है हमारी own field में भी. सो आई थिंक आई टेक डाउन द कंप्लीट हिस्ट्री, उनका डाइट रिकॉल में लेती हूँ, उनसे समझती हूँ मैं वो क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं. क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो शूट पे जाते हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है घर का खाना हर बार कैरी करना. ट्रैवल करते हैं वो लोग, नाइट शिफ्ट्स में जॉब करते हैं, इस कंट्री में नहीं है, उनका टाइम डिफरेंस है, उनको वो चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है जो यहाँ पे हमको मिलती है, एनी बेसिक सीरियल्स और मिलेट्स और फ्रूट्स. सो दैट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट. सो मेन इम्पॉर्टेंट है कि मैं उनका रिकॉल लेती हूँ, उनकी नापसंद और पसंद समझती हूँ, एंड उसके बेसिस पे मैं पूछने के बाद उनके साथ इट्स लाइक अ म्यूचुअल थिंग दैट वी मेक देयर डाइट एंड देन मेक देम अंडरस्टैंड कि हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले, पूरा उनको मैं पहले समझाती हूँ, सो दे गेट कंफर्टेबल. सो वी डोंट सिट हियर. द मेन इम्पॉर्टेंट ऑफ माई QSlim टीम इज दैट इवन माई स्टाफ इज ट्रेन लाइक दैट कि हम कोई चीज़ सेल करने के लिए नहीं, वी डोंट सिट टू सेल एनीथिंग. What we do is we give that confidence to the patient that this is what you have, and being honest, this is what you can achieve, and this is a little impossible. So जैसे आपने कहा नवदीप, में बहुत अच्छा पॉइंट था कि जब मेरे पास लोग आते हैं तो मुझे पहले बोलते हैं मैंने ये डाइट किया है, मैंने इंटरनेट से देखा है, मैंने ये न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए हैं, XYZ, I've lost 20 kgs, now I'm not losing anything, I'm just stuck on it, so do you think you can make me lose weight? So ये सब क्वेश्चन जब हमको उनको पहले काउंसिल करते हैं, उनको पहले समझाते हैं कि दिस इज व्हाट वी कैन डू एंड दिस इज व्हाई यू आर नॉट लूजिंग वेट, दिस इज व्हाई यू आर गेटिंग स्टक, एंड वो आई थिंक रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, उनको वो समझाना इज व्हाट मेक्स द ट्रिक. एंड देन वी डोंट like I said, we don't push to sell anything, and I just tell them this is what you can expect out of me, and by the grace of God that has worked so far. So I think that is what has triggered. Yeah. Well, so we got some interesting photographs of some great clients that we have. Little things which Pradeep ji is actually showing here on screen. Yes.
कुछ चीजें हैं जो आई बिलीव आर very a big testament to what Pallavi has been able to achieve during these years in her life, and I think it's just a small compilation of her work and of her professional history, which is awesome. So I believe, even by the expressions on that particular photographs, it's very understandable that you actually treat patients in a very personalized manner, which I believe is a part of your profession, is a very important section of your profession also. सबसे पहली बात जो आपने कही कि पेशेंट्स को कंफर्टेबल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी वो आप में कन्फाइड कर पाते हैं और आप उनका इलाज प्रॉपर्ली कर सकती हैं. जी, एग्जैक्टली, बिकॉज देन दे टेंड टू फील कि ये बिकॉज हम लोग भी बहुत सारे ऐसा पर्सनल क्वेश्चंस पूछना होता है, उनकी पर्सनल हिस्ट्री होती है. व्हेन दे until unless they are not comfortable with me, they will not open up to me and explain it. So of course it's इम्पॉर्टेंट कि हम वो काउंसलिंग पहले करें, हमको कंफर्ट जोन में रखें और उनको एक्सप्लेन करें कि आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरह का ट्रीटमेंट होने वाला है, एंड दैट्स हाउ दे ओपन अप एंड स्टार्ट. बिल्कुल. Before we move ahead, I would just like to tell you that Raju sir is not here physically and conducting the show, लेकिन वो देख रहे हैं काफी ज्यादा properly. उन्होंने अभी 2 comments किए. In one of them he was actually wishing you, and दूसरी जो उन्होंने comment करी वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा point मेरे लिए लिखा है, जहाँ पे ये लिखा है कि you were part of Leo Mumbai Soul, because I am presently the club advisor for Leo Club of Mumbai Soul. So that is something which has given me an indirect indication, I guess. But how? No, in fact, Navdeep, I've been a part of the Lions Club and Leo Club and with Raju uncle since many years. I think when we used to go to school, तब से हम Lions Club के member है, Leo Club के member थे. तो बहुत ही long journey रहा है. I think it's just the past couple of years that I have not been a part of that group, but I wouldn't say that we've been disconnected. We have been connected for sure. Fabulous. Well, one of the questions I believe एक बड़ी specific terminology आजकल इस्तेमाल करी जाती है when it comes to lifestyle, when it comes to other things. Healthy living, it is a terminology which is used very variant. बहुत सारे लोग बड़ी easily उसे use कर लेते हैं कि healthy living से ही चीजें improve हो सकती हैं. What exactly as a nutritionist would you say about healthy living? क्या है healthy living? ये concept क्या है? Yeah, so that's again a very commonly asked question, Navdeep. So we also do the same thing. I believe in that you are what you eat today. So हमारा जो body का formation है, there are certain macronutrients and micronutrients like carbohydrate, proteins and fats and water and vitamin, minerals, fiber. ये 7 चीज़ों से हमारा body every day उसकी need होती है. So there are a lot of diets on the internet today which okay हम we just take a high protein diet, we just take a low carbs diet, we just take a very restricted or very strict kind of a diet. So what I believe and what I tell all my clients and patients is कि healthy living, that is a overall healthy lifestyle change is what we need to do. So it's not about कि आप मेरे पास आए हैं, हम 3 महीने में आपको मैंने 15-20 किलो कम करवा दिया and that's it, you're done. No, आपने उसके बाद वो जो 15-20 किलो हमने कम किया उसको सस्टेन कर पाए हैं कि नहीं, आप उस दौरान वो जो आपकी जर्नी रही है उसमें आपको कोई और हेयर फॉल, कोई और नी पेन, कुछ और बैक एक, कोई एसिडिटी, कोई ब्लोटिंग, वो सब इश्यूज तो नहीं हुए हैं कि नहीं. सो दैट इज व्हाट इज हेल्दी लिविंग. दैट हेल्दी लाइफस्टाइल इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्मिंग योर एवरीडे लाइफस्टाइल इनटू अ हेल्दियर लिविंग, ऑप्टिंग इन अ बेटर, मोर न्यूट्रिशनली साउंड डेली इनटेक ऑफ द न्यूट्रिशन. सो ये जो हम बैलेंस डाइट बनाते हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, एवरीथिंग, उसको हम बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज करते हैं. सो आई मेक अ बैलेंस डाइट सो दैट आपको इस जर्नी के दौरान और कोई डेफिशिएंसीज नहीं आए. अगर आते हैं तो हमको वो इम्प्रूव करना है. सो in fact lot of patients ask me कि हम ये करेंगे तो मेरी स्किन सैग तो नहीं हो जाएगी, मुझे वीकनेस तो नहीं आ जाएगी. So I try to tell them I'm a nutritionist. I'm here to take care of your nutritional need. And आपको आएगी नहीं, जो है already वो improve होगी, because that is what we're here to do. I'm not here to just shrink you 30 kgs and then just leave you, because then फिर आप bounce back करेंगे तो it doesn't make sense. Then that's not taking care of the nutritional need. So I think lifestyle change जो हम करते हैं with better eating habits, better water intake, not even that, better exercise capacity, better cardiovascular strength and better sleep. क्योंकि आजकल स्ट्रेस आई थिंक हर इंसान को, एक रिक्शा वाले को भी है और बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी है. सो उस स्ट्रेस को हम कैसे टैकल करते हैं, उसको हम कैसे डील करते हैं, उससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होती हैं, ऑल दैट इज आई थिंक व्हिच इन्वॉल्व्स अ हेल्दी लिविंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टू अ बेटर लाइफस्टाइल. Absolutely.
Well, I think you've given a lot of insights about how actually things can be improved. One of the other questions I believe is a very common question, especially with India being a very young population. हमारा देश जो है वहाँ पर 35 से 50 की population का bracket काफी ज़्यादा बढ़ रहा है. That's right. In fact, 25 to 50 की population जो है, that bracket is the maximum in India, and globally भी it is something which is considered to be a very big asset. लेकिन कहीं ना कहीं with the environmental changes and with the way the pollution is increased and with the way corporates have come into the country, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ गया है, क्योंकि फॉरेन शिफ्ट्स में काम करते हैं वो लोग और रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं. इस वजह से भी कई लोगों के कई मील्स स्किप हो जाते हैं जो जनरल लाइफस्टाइल में डेफिनेटली वो लोग लेते. तो ऐसे जब आपके पास केसेस आते हैं जहाँ पर नाइट शिफ्ट इनएविटेबल है, अवॉइड नहीं करी जा सकती, और दिन में 2 ही मील प्रोबेबली शायद ले सकते हैं लोग, तो उस तरीके के एडजस्टमेंट्स पे आपका क्या अप्रोच होता है, या इस तरीके की इरअप्रोचेबल चीजें होती हैं जिनमें कुछ नहीं किया जा सकता? नहीं, सो लाइक आई सेड इनिशियली नवदीप, कि मैं केस टू केस हैंडल करती हूँ. सो मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और उनकी मजबूरी है, या किसी किसी का डे शिफ्ट होता है पर उनका वर्क इतना हेक्टिक होता है कि दे कैन नॉट, इवन इफ दे वांट टू, इवन इफ दे फील वेरी हंग्री एंड दे वांट टू गो गेट अप एंड गो एंड ईट, दे कांट, बिकॉज उनका डेडलाइन है, उनके प्रोजेक्ट है फॉर वेरियस रीजन. जो शूट पे है, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्टर्स ऑफ टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री, उनका शूट है, they have to stand for this many hours, they have to give that shoot. जो musicians हैं, dancers हैं, तो what I believe is that every food has a particular time to eat, and that is when it is best absorbed. Every food has a particular combination by which it is best absorbed. I'll give you a small example. जैसे हम fruit खाते हैं. Now fruit in general, everybody would say that fruit is so healthy and हमें कोई भी fruit हम खा सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं and all of that. But eaten at a wrong combination, that is अगर हम lunch के साथ, काफ़ी लोगों की आदत होती है कि lunch के साथ हम बैठे हैं, एक ही मील खा पाएंगे तो साथ में हम fruit खा लेते हैं, तो वो wrong है. बिकॉज सबका डाइजेशन टाइम डिफरेंट होता है, तो वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली. अगर हम रात को लेट खाते हैं फ्रूट, सो दैट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू ईट द फ्रूट, सो इट शुड बी ईटन इन बिटवीन द 2 मील्स. सो ऐसे हम काफ़ी फूड्स हैं जो रात को हम कंज्यूम कर सकते हैं, इन द सेंस जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम हमारा ये कंप्लीट हो गया मील, हमने डिनर कर लिया, उसके बाद हमें बहुत हम भूख लग रही थी, उसके बाद में उठ के बिस्किट खा रहे थे, हम चढ़ रहे थे, हम चिवड़ा खा रहे थे, XYZ हम खा रहे थे. तो उसके लिए भी लाइक आई सेड देयर आर फूड्स जो हम नाइट में, बिकॉज दीज पीपल, इनका एक सर्कैडियन रिदम होता है, बॉडी का जो रिदम होता है, स्लीपिंग साइकिल होता है, वो ही चेंज हो जाता है. व्हेन दे आर स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, नाइट में वो जगह है. तो उस समय कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो राइट कॉम्बिनेशन में अगर खाएंगे हम लोग, तो उस समय देयर ब्रेन एक्टिविटी इज ऑल्सो बेटर, द ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब बेटर इन द ब्रेन, एंड दैट्स हाउ दैट कीप्स देम मोटिवेटेड फॉर गोइंग. सो ऐसा नहीं है कि उन लोग के लिए डाइट नहीं है, उन लोग के लिए डिफरेंट है. लाइक आई सेड, हर पेशेंट, हर क्लाइंट का डाइट डिफरेंट होता है, बॉडी टाइप अलग होता है, बट इन लोगों का और अलग थोड़ा सा बनता है. एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर उनके वो चैलेंजेस होते हैं कि मेरे कैंटीन में क्या मिलता है, उसके बेसिस पे हमको फूड मिल जाए, ऑप्शंस मिल जाए तो हम खा सकते हैं. हम घर से जो कैरी करें मॉर्निंग से आफ्टरनून से, वो खराब नहीं हो जाए. तो वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती. दैट्स व्हाई इट टेक्स मी अ गुड 45 मिनट्स टू 1 hour टू काउंसिल देम, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड देन गिव देम द डाइट, ताकि वो समझ सकें. एंड हर लाइफस्टाइल के बेसिस पे डाइट बन सकती है, बिकॉज उनकी वही खराब लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है हमको. एंड बिकॉज दे कांट स्टॉप देयर वर्क, राइट. तो हमको उसी खराब लाइफस्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव करना है एंड मेक इट बेटर इन वट एवर बेस्ट वे वी कैन. So there is definitely a good change which we can do. Fabulous. I think nutritionists actually, in a broader sense of the word, I think these days are the ones who are actually bringing about a lot of change, because a lot of change is required for a lot of people in their lifestyles to live healthy, I guess. Now coming to a very important question, I think Q Slim Fitness Studio, which is something which was your yes. If I can put it, it is your baby. So yes. Tell us a little about Q Slim Fitness Studio. How did it come into being? Yes. So I started, like I said, after completing my education, I worked in Asian Heart for some time and interned over there. Then I worked with the Aditya Birla organization, Yash Birla organization basically. And वहाँ पे भी बहुत सारे cases हम देखते थे. वहाँ skin भी था, dentistry भी थी, and nutrition भी था.
इसके बाद when I kept on going and I knew that, like I said, Dr. Madhu Chopra gave me that opportunity. She had her own clinic and she gave me that opportunity to practice with her. And I think वो एक जो चीज़ थी जब मैं individual clients को counsel करती थी और diets बनाती थी, तो वो जो एक satisfaction मुझे मिलता था, that just kept me going, that I want to do this individually. I want to take care of the clients and my own self. And luckily I could see that the results were going good, and people were referring, family members and friends and all of that, relatives and all that. So I think wahan se, that year itself, I started working a little, and started this Q Slim fitness studio, which says actually a quicker slimming solutions for a better you. And that's what the better you is, that we want to make your best version coming out. So that is the better you, and that is the tagline of our Q Slim. But and I completed my MBA to just understand, how I have to, Q Slim ko grow kaise karna hai, and which is, I think, important thoda to understand. So all these specializations, you missed out on my two specializations actually, Navdeep. So I first did it in clinical nutrition, then in cardiac nutrition, then in orthopedic nutrition, which is bone related, knee replacements and back pain and arthritis and all that, and renal nutrition, that's kidney related, like dialysis patients and CKDs, chronic kidney disorders and all that. So I completed all of that. जैसे मैं देख रही थी जिस तरह के केसेस मेरे पास और आ रहे थे, apart from weight loss तो आजकल बहुत लोगों को होता है. बट वॉट आई हैव ऑल्सो सीन इज दैट आजकल किसी को सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ थायराइड या पीसीओडी या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होता ही है. सो व्हेन आई स्टार्टेड ट्रीटिंग द क्लाइंट्स इन बोथ वेज, विद द वेट लॉस एज वेल एज हेल्पिंग देम आउट विद इम्प्रूविंग देयर मेडिकल कंडीशन, आई थिंक दैट गिव मी एन एज टू more confidence that I should be, establishing and improving my Q Slim and growing my Q Slim. So I think that's how it's been 14 years to Q Slim also now, because I started from the first year itself, and hopefully, touch wood, it's going good, and hopefully it will do better. Absolutely, I think we at team of VSS, I think wish you great success in the future also. I think it's going to run really well, क्योंकि honestly देखा जाए तो need of the hour है. It is something which is required by all walks of life, all ages. Everyone's having a little bit of problem when it comes to diet. जो सबसे important बात आपने कही कि COVID has actually rendered a lot of us immune deficient. तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको immunity बढ़ाने के लिए भी एक particular nutritionist की ज़रूरत पड़ती है. I believe me being a sportsman, if I can speak from that angle also, that is something which is a very important aspect. In fact, most of the national teams have also started recruiting nutritionists these days on a full-time job, in fact. So I believe the genre that you've taken up, जब इसमें रिस्क था थोड़ा बहुत, इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज नहीं थी, तब आपने ये बोल्ड स्टेप उठाया. आई गेस लाइफस्टाइल चेंजेस लाने की जो एक जॉनर आपने चुनी है वो कभी भी पुरानी नहीं हो सकती. सो it's fabulous that you chose that, and I wish you all the success in that. Thank you. Actually, I just want to add that all of this, like you asked me the journey of Q Slim and all that. So this has been going on since now 14th year, but definitely I would say that I'm married to a Sindhi also, and my husband, my in-laws, all of them have also equally supported me how my parents supported me. So they also understood that if I'm working for 12 hours also, if I'm working for 14 hours, तो वो जो support मुझे उन लोगों से भी मिल रहा था to keep on going. So I think that's why in the last 5 years also I've grown, I think, a little more, because my husband comes and helps me out in whatever small things he can. अपने काम को छोड़ के उसके बाद बस खत्म करके फिर आना, मुझे हेल्प करना. So I think all of that has also pushed me to make Q Slim more, and give more importance to it and make it more big. So thanks to all of them. I think all of them have been a part of this journey. Absolutely, I think family is a very integral part, especially जब आप एक business कर रहे हैं तो it's a very difficult journey. A lot of people think business is easy to run when it becomes successful, but it's almost like an everyday start again and again. So obviously the support that you've already talked about is very important, and kudos to the entire team that you have. One last message, I believe, before I ask you to stay backstage for a little bit, because we'll have to get our other guests. So one last message to all our viewers who are watching you today, from the fraternity of Vishwas Sindhi Seva Sangam and otherwise, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? I would just say that taking care of your own health as early as you can start
is, I think, the best gift that you can give to yourself. Because आप जितना early start करेंगे, जितना जल्दी realize करेंगे, don't wait कि मुझे कुछ हो जाएगा, हम तब start करेंगे, तब कुछ कोशिश करेंगे. I think even if you're healthy, take a step forward, go meet your nutritionist or your dietitian, understand what is your body type, and understand, you know, what is the best food for you, and start over, so that आपको वो stage पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े that you know हमको अब बहुत ज़रूरत है and now we can't do anything and we have to take care of our health. So I think that is very important. Regular checkups is important, exercise is important, sleep is important, taking care of your stress is important. So yes, I think I can read Raju Uncle's message that Pallavi has to come back to soul as Ramchandani couple. I will be soon, very soon, Uncle. So I think that's my message to everyone, that believe in yourself, be good, eat good. What nature can do and change yourself, change you, nothing else can do. So I think just start early is what I would like to say. Thank you. Well, thank you, Pallavi. That's a great message. I guess most of the viewers watching us here, Pallavi's given us a great message about taking care of our own health, and at the same time has said that do visit her, go to Q-Slim, understand yourself, and have a great diet and have a great health moving ahead. So thank you, Pallavi, for joining us. We'll request you to stay backstage for just a while, and we'll try and get you back on stage in the next 20 to 25 minutes. So we'd request you to stay back. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you, Pallavi. Thank you. Well, ladies and gentlemen, as expected, it was an absolutely fascinating discussion of life and lifestyles, including the very integral food habits and their implications. We are sincerely thankful to Dr. Pallavi Srivastav for sharing her incredible wealth of wisdom with all of us and teaching us the real essence of healthy living. Moving on, our next guest for tonight is yet another individual par excellence. A woman who has embodied excellence and personified hard work as her most important trait to be a successful cricketer in the leagues of Rajasthan. She's an avid cricketer and has represented various entities during her rise to the league cricket opportunities in her state. Her attitude towards the game and her passion for the same has seen her rise up the ranks to become a successful and renowned cricketer, who is now an inspiration to not only her community but to the entire fraternity of girls wanting to pursue cricket as a career option in India. With the women's IPL sanctioned in India from this year, we pray and hope that our guest tonight can take the leap to the squad in the same and ultimately one day wear the Indian colours to make us all proud. Ladies and gentlemen, it's an absolute privilege for me to call upon the distinctive sportswoman with sheer grit and humility to perform, Honorable Jaya Kurani. जया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है जया जी के साथ? अच्छा जया जी, अगर आपके पास कोई और एरिया हो जहां से घर में जहां पर नेटवर्क बेटर हो, जहां से आप कनेक्ट कर पाए, तो प्रदीप जी आप कोशिश कर सकते हैं एक बार. इन द मीन टाइम विश्व सिंधी सेवा संगम, सारे के सारे सिंधी समाज और बाकी हमारे सारे श्रोतागण जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है. आप लोगों ने शो के शुरुआत में देखा होगा एक वीडियो जहां पर विश्व सिंधी सेवा संगम का 5th इंटरनेशनल कन्वेंशन जो दिल्ली में होने वाला है 13, 14 और 15 जनवरी 2023 को हयात रीजेंसी में. आई बिलीव देश भर में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ में से काफ़ी बड़े लेवल पर अगर कोई कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो विश्व सिंधी सेवा संगम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है. बहुत ही ज़्यादा भव्य समारोह होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे 3 दिनों के प्रोग्राम्स हैं. तो जितने भी लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं और विश्व सिंधी सेवा संगम के साथ जुड़ना चाहते हैं, काइंडली कॉन्टैक्ट अस. जया जी, जया जी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको मेरी? जी सर, जी सर. जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जया जी हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए. बड़े दिनों बाद पहली बार मुझे किसी क्रिकेटर से बात करने का मौका मिल रहा है. तो सबसे पहले जया जी हम जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत आपके बारे में, आप कहाँ से आती हैं और क्रिकेट में आपका रुझान किस तरीके से बढ़ा और आजकल आपका क्रिकेटिंग स्तर पर किस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है? देखिए, जया कोरानी है मेरा नाम और मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. और जैसा कि आपने पूछा कि मैंने कैसे करा, तो इन चाइल्डहुड मैंने शुरू कर लिया था अपना करियर क्रिकेट में. काफ़ी मतलब गलियों में खेला, फिर धीरे धीरे कॉलेजेस में खेला, स्कूल्स में खेला,
और कॉलेजेस में काफ़ी जैसे कहते हैं क्रिकेट के साथ साथ एक अपना सेकेंडरी गेम भी होना चाहिए, तो वॉलीबॉल मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे 3 इयर्स को गर्ल्स वुमेन्स पे खेला। एंड अभी इन 2021 में मैंने स्टेट सीनियर टेनिस बॉल पे क्रिकेट की अपनी रनर अप पोजीशन बनाई थी, और अभी हाल ही फिलहाल मैं 2 आरपीएल प्रीमियर लीग खेल चुकी हूँ। एंड तीसरा मेरा कैरी ऑन है एंड 16 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर, एंड ये मेरा तीसरा आईपीएल है जो मैं खेलने जा रही हूँ वुमेन्स के साथ। और अभी इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट मैं वहीं पे प्रैक्टिस में हूँ, रूस क्रिकेट अकेडमी इन अजमेर। सो मैं कीपर और बैट्समैन हूँ। काफ़ी अच्छा है, लगता है, फिटनेस होती है और प्रैक्टिस कैरी और मिलती है, सुबह सुबह भी मिलती है, शाम को भी मिलती है। मतलब एट अ डे 1 डे 6 आवर्स और कंपल्सरी इन प्रैक्टिस। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जया जी, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज हर एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में होती है कि कोई भी चीज की शुरुआत एक इंस्पिरेशन से होती है या एक मोटिवेशन से होती है, जिसके तहत हम जिस कोई एक आइडल होता है, कोई एक रोल मॉडल होता है जिसको देखकर आप एक गेम की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर उसे अपना करियर बनाते हैं। तो आपके लाइफ में आपका रोल मॉडल कौन रहा है? इंस्पिरेशन एक वो थी कि यार वुमेन्स की भी होनी चाहिए। धीरे धीरे मिताली राज का नाम सुना, स्मृति मंदाना का नाम सुना, और mom and my brother and sister. प्रदीप जी, आई थिंक नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत अभी भी है। अगर आप चेक कर सकें एक बार फिर से जया जी के साथ, आई बिलीव थोड़ी सी आवाज़ उनकी क्लियर नहीं आ रही थी। जया जी, आप एक बार फिर से ट्राई कर सकती हैं? थोड़ी आपकी आवाज़ कट रही थी। जी जी, मैं कह रही थी कि अभी जिस लेवल पे मैं हूँ वो मेरा काफ़ी अच्छा रोल था। मेरे इंस्पिरेशन की आप जैसे बात कर रहे हो, तो मैंने धीरे धीरे मिताली राज को देखा, स्मृति मंदाना जो मेरी फेवरेट क्रिकेटर है, मैंने उनसे सीखा। और लाइफ में मेरे को जो मोटिवेट मिला अपने मॉम डैड से मिला एंड अपनी फैमिली से मिला, मेरे कोचेस के थ्रू मुझे जैसे प्रैक्टिस का उन्होंने जैसे अब दिए मेरे को डिसीजन, वैसे मैंने करा। और है ना, जैसे जैसे वो बताते गए मैंने वैसे ट्राई करता इस लेवल पे बच्चों को भी। आई बिलीव एक थोड़ा सा फिर से एक टेक्निकल ग्लिच है, बट इन द मीन टाइम प्रदीप जी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर, ही विल ट्राई टू गेट अस बैक इन कांटेक्ट विद जया कुरानी जी। बात करेंगे उनके बारे में। उन्होंने अभी अभी वो बात कर रही थी मिताली राज के बारे में और स्मृति मंदाना के बारे में। आई थिंक दो एक्सट्रीम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट की उन्होंने बात कही इन टर्म्स ऑफ जेनरेशन। मिताली राज अभी अभी हाल ही में रिटायर हुई हैं और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिकेटर और बतौर कैप्टन भी उन्होंने काफ़ी काम किया। जया जी फिर से जी जया जी, आपने मिताली राज का नाम लिया, आपने स्मृति मंदाना का नाम लिया, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं ये दोनों। आप आरपीएल जैसे आपने कहा कि आप खेल चुकी हैं और अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी स्टेट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो तो वहाँ पर क्रिकेटर ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ सकता है। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में और आपके हाल ही आरपीएल के जो एक्सपीरियंस में आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पे स्केल है, वो सारी के सारे प्रॉपर हैं आपको क्रिकेटिंग करियर परस्यू करने के लिए? देखो, वो तो चीज अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, अपन को आपका ग्राउंड कैसा मिलता है, आपको कोचेस कैसे मिलते हैं। वैसे काफी लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा भाई अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको अपनी मेहनत जो लगती है वो बरकरार रखनी चाहिए। बाकी तो देखो, फैमिली का सपोर्ट है और आपको अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए कि भाई हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्राउंड भी अच्छे है अजमेर में, और जयपुर में भी बहुत अच्छे है। बिल्कुल 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 सही बात है। कोचिंग के स्तर पर अगर बात की जाए जया जी, तो विमेंस क्रिकेट पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। काफ़ी सारे टूर्नामेंट में भारतीय टीम फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में पहुंची है। कई जगह स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इस साल से
सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि अगले साल से आईपीएल भी विमेंस के लिए कंडक्ट किया जाएगा। तो क्या आपके थोड़े बहुत प्लान्स हैं कि आप आरपीएल से आगे बढ़कर आईपीएल के लिए भी सिलेक्ट हों और वहां पर भी अपने स्टेट को या जो फ्रेंचाइज हो उसको रिप्रेजेंट करें? हाँ, कोशिश चल रही है। एक्चुअली में देखो, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो अपनी कंट्री को एंड स्टेट को रिप्रेजेंट करे, और आरपीएल से आईपीएल है, बट मेहनत चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है, आगे ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही फिलहाल 2-3 साल राजस्थान में खेलना पड़ेगा हमको। इस बार अगर हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे तो फिर बीसीसीआई की तरफ से एक नया ऑर्डर आएगा, उसमें हमारे ट्रायल्स होंगे और फिर आईपीएल में हमको जगह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। जया जी, सबसे इम्पोर्टेंट एक जो आजकल विमेंस गेम में भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, वो हो गया फिटनेस। अगर आपको क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट में आपका रुझान है और उसमें टैलेंट है, वो एक तरफ रह जाता है अगर आपकी फिटनेस प्रॉपर तरीके से ना हो। तो फिटनेस के लिए आप क्या करती हैं और आपका क्या स्केड्यूल रहता है उस हिसाब से? जी बिल्कुल, फिटनेस बहुत ज़रूरी है क्रिकेट के लिए। अगर आपको आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो आपकी क्रिकेट का कोई ऐसा महत्व नहीं है, कोई लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है अगर आपका फिटनेस अच्छा नहीं है। अगर आप एक यो-यो टेस्ट होता है उसमें क्रिकेट में, अगर आपने वो पास नहीं किया तो आप भले कितने ही अच्छे बैट्समैन हो, कितने अच्छे बॉलर हो, कितने अच्छे विकेट कीपर हो, चाहे कितने अच्छे आप फील्डर हो, अगर आपका बॉडी फिट नहीं है या आप अगर यो-यो टेस्ट पास नहीं कर पाते हो एट अ टाइम, तो आप फेल हो जाते हो। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड लास्ट आपको फिटनेस पे पहले ध्यान देना पड़ता है। आपको प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ता है एंड हाफ एंड आवर रनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद काफी सारे वार्म अप्स है, एक्सरसाइजेस है एंड स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। और काफी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेचिंग करने के बाद खेल लेते हैं लेकिन वापस कूल डाउन नहीं करते। तो काफी प्लेयर्स की ये भी तकलीफ आती है कि हमें बॉडी पेन होता है, क्योंकि उनकी बॉडी हॉट होती है। अब हॉट होने के बाद काफी लोगों को जल्दी रहती है कि हम लोग घर चले जाए, लेकिन बॉडी जब तक कूल डाउन, अब स्ट्रेचिंग करा बॉडी को, जब तक आप कूल डाउन वापस उसी अपन नहीं लेकर आएंगे जिस बॉडी को अपन पहले रखे थे, तो उस तब भी अपन को वो होता है कि अपनी बॉडी पेन हो रही है, और उससे ये होता है कि भाई बॉडी में आपका एसिडिक हो जाता है, तभी अपन को ठंडे ये सब कुछ। लेकिन आपको बॉडी को कूल डाउन करना बहुत जरूरी है अगर आपको फिटनेस कर रहे हो तो प्रॉपर वे में, यही होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जया जी, एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिटनेस का, जिसे रिकवरी कहा जाता है। रिकवरी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर जगह पर पहले हम देखा करते थे कि इतना ज़्यादा क्रिकेटर्स को और इमर्जिंग क्रिकेटर्स को खासकर जो स्टेट लेवल पर खेलते थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते थे, उनको इतना ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि आइस पैक्स का इस्तेमाल करना या अपनी इंजरीज को ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एड्रेस करना। कई जगह हमने ये भी देखा है कि कई सारे लोकल क्रिकेटर्स इंजरीज के साथ भी खेलते रहते थे। तो इंजरीज को किस तरीके से आजकल हैंडल किया जाता है और आपकी नज़र में जो रिकवरी है वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है? इंजरीज देखो, जैसे कोचेस की बात कर रहे तो आजकल जैसे आरसीए लेवल पे इन लोगों पे कोचेस हाई लेवल पे आ रहे हैं। पहले लोकल लेवल देखो कि पहले का क्रिकेट का इतना इशू नहीं होता था, आजकल क्रिकेट का इतना इशू है। चाहे वुमेन्स और मेन्स आप दोनों बोथ की बात करें तो दोनों में इतना हो गया कि उस हिसाब से फिर ये जो कोचेस की और जो रेफरीज की बात करते हैं उनका भी एक और ट्रायल होता है, उनको भी अपन सेलेक्टेड करते हैं कि इनको सब कुछ पता है या नहीं पता है। कल को अब जैसे जयपुर जैसे शहर में तो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को भी रखा जाता है, जो है ना इंजरी के थ्रू भी अपन को बता सकते हैं कि भाई ये चीज यहाँ पे ये लगा रही है। आज अगर सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मेरे फिंगर पे बॉल लग गया तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो गया, मतलब खून का जो थक्का होता है वो जम गया, तो मुझे पता है कि मुझे उस चीज पे आइस पैक करना है और मुझे उस चीज को इंजरी को उसमें मतलब बैना प्रेस लगा के रखना है जिससे उस चीज का बचाव हो सके, जिससे मेरे को, क्योंकि ये जो इंजरी है वो अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइफ टाइम का सवाल है। अगर अपन नजरअंदाज अभी करेंगे तो अपन को ये कैरियर में बहुत तकलीफ आएगी। इससे अच्छा तो आप महीना 1.5 महीना आप रेस्ट करो उस इंजरी को और फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस जो है वो कैरी ऑन करो, क्योंकि इतने से बड़े लेवल पे जी इतने से बड़े लेवल पे जो क्रिकेटर्स होते हैं। रिसेंटली जडेजा का जो हम सुन रहे थे कि काफी लेग का जो पैर है वो काफी वो डैमेज हो चुका, तो उनको भी एशिया कप के लिए नहीं लिया था। तो मैं यही मतलब रिकॉग्नाइज करूंगी कि जितना आप इंजरी में अगर आराम करोगे, अतः अपनी बॉडी को रेस्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि
आप 1-2 महीने अच्छे से निकालोगे और अच्छा ट्रीटमेंट करोगे तो आप आगे का जो है प्रोसेस वो अच्छे से खेल पाओगे, मैचेस अच्छे से खेल पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन पर आते हैं, एक जय जी कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं आप, जैसे आपने कहा, विकेट कीपर बैट्समैन जी, भारत जी। में काफ़ी सारे हुए हैं वुमेन्स टीम में, और काफ़ी अच्छे-अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन भी आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि विकेट कीपर बैट्समैन जो कि ज़्यादा अच्छा बल्लेबाज़ हो, उसकी कहीं न कहीं थोड़ी कमी देखी जाती है इंडियन क्रिकेट में, ख़ासकर जो कि एक्सपर्ट विकेट कीपर भी हो। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो स्किल सेट है उसकी वजह से आपको थोड़ा-सा और मौका मिलने का चांस है भारतीय टीम की तरफ भी, अगर आप देखें तो कभी? कमी इसलिए देखी जाती है, देखो क्योंकि एक तो होता है प्योर बैट्समैन, एक जो पोजीशन होती है वो ऑलराउंडर होती है, एक होता है कि प्योर बैट्समैन के साथ आप फील्डिंग का भी काम कर रहे हो, जैसे एज ए मिताली राज, एज ए स्मृति मंदाना प्योर बैट्समैन के साथ वो फील्डर है। एज अ कीपर और बैट्समैन, कीपर का ये काम होता है अगर वो 60% कीपर में ध्यान देता है तो ओनली फॉर 40% की वो बैटिंग पे ध्यान दे पाता। इस कारण इसलिए उसकी जो स्किल्स होती है और ड्रिल्स पे नहीं ध्यान पाता, क्योंकि कीपर का जो काम होता है वो मेन बैट्समैन को आउट करना और स्टंपिंग करना। अगर वो सब चीजें हो जाती है तो बैट्समैन जो प्योर बैट्समैन है और विकेट वो रन इजीली बना सकते हैं। अब विकेट कीपर को 4th या 5th डाउन पे मतलब भेजा जाता है, जो केवल वो हिटिंग करने का ही काम करता है। अगर आपकी रिक्वायर्ड रेट ज्यादा है, करंट रेट उस हिसाब से कम है, तो आपको उस हिसाब से हिटिंग करनी पड़ती है और तो ही विकेट कीपर ऐसा अच्छा मार सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वर्कआउट होता है कीपर बैट्समैन, तो वो कीपिंग पे ज्यादा ध्यान देता। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस अवेयरनेस जो ये आपको है, यही आपको मुझे लगता है ज़्यादा मदद करेगी आगे जाते समय भी, क्योंकि जी काफ़ी सारी जी जी चीज़ों बिल्कुल। की काफ़ी सहज लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग है गेम की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अपने स्किल के अलावा गेम को जानना, जी गेम के बारे में समझना और उसकी स्ट्रैटेजी को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी जया जी, जी एक स्ट्रेटेजी बड़ा का जी, 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 बोलिए। स्ट्रेटेजी की देखो जैसे बात करें तो और देखो जैसे जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं तो कैप्टन को ये ध्यान देना पड़ता है कि वो अपनी टीम को कैसे हायर करता है, कैसे क्या। इट डिपेंड्स ऑन अ पिच, आपका पिच कैसा है, आप क्लाइमेट बहुत ही मायने रखता है पिच के लिए। अगर आपके पिच में नमी है तो बॉल टर्न नहीं होगा, तो आपको अपने बॉलर की शुरुआत मीडियम प्रेशर से करनी पड़ेगी। और आपके पिच में अच्छी वो है, ग्रासेस ज्यादा है, धूप ज्यादा है, पिच अगर टाइट है तो आपको स्पिनर से शुरुआत करनी पड़ेगी, जैसे बॉल अच्छा सा टर्न हो जाए, स्विंग ज्यादा हो, इन स्विंग फेंकते हो चाहे आप आउट स्विंग फेंकते हो, उस हिसाब से आप अच्छा खेल सकते हो। लेकिन एज अ कैप्टन आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि शुरू में तो आप फिटनेस करवाओ और ये वार्म अप वगैरह करवाओ, और सबसे पहले आप पिच को देखो। अगर आपको पिच का पता पड़ जाएगा तो आप इजीली मैच को अपने काबू में कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। जय जी, एक बड़ा देखा जाए तो एक तरीके से असलियत भी है गेम की, और एक बड़ा इम्पोर्टेंट भाग भी है गेम का, कि जो फाइनेंशियल रिटर्न हम्म तो गेम देता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई सारे लोग हैं भारत में जो बहुत सारे अच्छे लेवल पर क्रिकेटर थे या दूसरे गेम्स खेलते थे, लेकिन मॉनिटरीली थोड़े पिछड़ गए थे क्योंकि गेम से इतना उनको नहीं मिला। तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो लोकल लीग्स आप खेल रही हैं और आगे भी अगर आप खेलेंगी, तो उसमें मॉनेटरी लेवल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट किस तरीके का रहता है? आपको किस तरीके से उनसे जूझना पड़ता है, और किस तरीके से अपना मोटिवेशन आप बनाए रखती हैं? देखो वो अपने गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन अपने गेम से कैसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। और जैसे काफी प्रीमियर लीग होती तो हम उनको पॉइंट्स पे लिए थे हम लोगों को, और फिर हमारा एक बेसमेंट प्राइस जो होता है ना, उस पर हम लोगों को डिसाइड किया जाता है कि आपको इतने थाउजेंड या इतनी मनी मिलेंगे और आप इस लेवल पे खेल सकते हो। और जैसे फाइनेंशियल की दिक्कत आ रही है तो हम लोगों को मिल जाता है। और जैसे काफी फैमिलीज में जैसे गाँव में बच्चे खेल नहीं पाते क्योंकि उनके फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हर कोई अब अफोर्ड नहीं कर पाता क्रिकेट में। लेकिन अभी जितनी भी अकेडमीज है तो वो लोग एक्चुअल में क्या सपोर्ट करते हैं, आजकल पैसा वैसा नहीं देखते, आजकल प्लेयर देखते हैं कि प्लेयर कैसा है। प्लेयर ऐसा अगर अच्छा है तो आपको फीस माफ हो जाती है। अगर आपकी फीस ऐसा सपोज 1500 है तो आपकी 1000 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। और जैसे गांव में काफी बच्चियां हैं जो खेल नहीं पाती है तो उनकी भी ऐसी है कि भाई कोई किसी का फादर किसान है या कोई मतलब सब्जी मंडी सब्जी वाला है, तो उससे क्या हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी एक टीम बना है ऐसे जिससे हम
जो जितने भी राजस्थान में या ऑल ओवर इंडियन लड़कियां जो गांव में है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो हम उनको सिखाए फ्री में और राजस्थान लेवल तक आगे बढ़ाए, जिससे उनका करियर भी बिगड़ सही हो जाए और काफी अच्छा अपन को स्टेट को भी रिप्रेजेंट करे और अपने मम्मी पापा का, समाज का, अपने गांव का नाम भी रोशन करे। तो आगे की यही प्लानिंग है मेरी कि मैं एज अ कोच उनको भी मतलब ट्रेनिंग करूं, उनके गांव वालों को जो बच्चों को एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या क्या। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि और बहुत ही अच्छा मुझे लगता है दृष्टिकोण है आपका इस बारे में, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर किसी भी स्पोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है क्रिकेटर्स और उस स्पोर्ट से रिलेटेड लोग ही अगर काम करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्पोर्ट के लिए भी। क्योंकि जैसे अगर आप बीसीसीआई में भी देखें तो जब से भारतीय क्रिकेटर्स ने जी जी एडमिनिस्ट्रेशन की जी। कमान संभाली तो उसके बाद से काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं। बहुत बढ़िया। आपने कहा जया जी, कोई आपने अपने क्रिकेटिंग करियर के दौरान कोई आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली हो जो एक आपको एक या दो आपको कोई गेम्स या कोई ऐसे इंसिडेंट्स याद हो जो बहुत यादगार रहे हो आपकी क्रिकेटिंग जिंदगी में? हाँ, काफी देखो मोमेंट तो काफी सारे इंस्पिरेशन से भले होते हैं और काफी यादगार होते हैं, बट एक जो मोमेंट है, मेरा फर्स्टली प्रीमियर लीग खेला था जब मैंने, और तो उसमें मेरा एज अ कैप्टन, मैं वुमेन्स कैप्टन थी, तो उसमें मतलब काफी अच्छा था मेरा, मतलब 10 बॉलर पे हम लोगों को 40 रन चाहिए थे। तो वो जो चीज थी, हिटिंग करते 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 और लोगों का जैसे बाहर की जो ऑपोजिट टीम थी वो डिमोटिवेट ज्यादा कर रही थी, तो उस वक्त हम लोगों को ने ठान ली कि ऐसा करना है और 6 पे 6 मार टीम में जीत गई थी। और फर्स्टली जब मैंने 27th स्टेट टूर्नामेंट था टेनिस क्रिकेट में, तो मेरा वो टूर्नामेंट मेरी लाइफ का पहला टूर्नामेंट था जिससे मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला और मैंने काफी लड़कियों को भी देखा कि क्या लड़कियां खेलती है। वो फर्स्टली हमको जब पता चला था, हम लोग टूर्नामेंट के दौरान गए थे, तो एक लड़की का खेलो हुई है, उस वक्त हमारा था नहीं कि हम लोग राजस्थान खेलो हुए थे या क्या। तो वो एज अ गेम ऐसा था, रूल था कि जिस छक्के मारने पे आपको आउट हो जाएगा, लेकिन उस लड़की ने एकदम हिटिंग करा और मैंने उसी लड़की का कैच पकड़ा और वो आउट हो गई थी पहली बॉल पे। तो ये काफी मेरा मेमोरेबल डे था कि मैंने उस लड़की का आउट कर, इस लड़की के हमारी चर्चे सुन रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है। आई थिंक स्पोर्ट्स के जो इंसिडेंट होते हैं और जिस तरीके की यादगार चीज़ें होती हैं, उनसे उनसे ज़्यादा प्रेरणा आई हेलो। बिलीव प्रेरणा स्रोत कोई भी नहीं होता। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जया जी? प्रदीप जी, अगर आप एक बार टेक्निकल्स चेक कर सकें। जी, आई बिलीव जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं, दो अलग अलग क्षेत्र की यंग महिलाएं आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया और दोनों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताई। दोनों अपने क्षेत्र में काफ़ी माहिर, काफ़ी ज़्यादा अचीव कर चुकी हैं और आगे भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए भी। मुझे लगता है बहुत अच्छे साइंस हैं ये फॉर द कंट्री ऑल्सो, क्योंकि इसी तरीके से मुझे लगता है अगर फीमेल्स आगे आती रहें और अपने प्रोफेशंस में इतना ज़्यादा प्रोफिशेंट होती रहें और एफिशिएंट होती रहें और इसी तरीके से प्रोत्साहित करें आने वाली जनरेशन को भी, तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है हमारा देश। हम कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं जया जी से जुड़ने की। आई बिलीव द टेक्निकल डायरेक्टर इज ट्राइंग इज बेस्ट, बट जिस तरीके से भी हमारा कनेक्शन होगा हम फिर से वापस आएंगे। इसके पहले मैं फिर से अनाउंस कर दूं कि विश्व सिंधी सेवा संगम 14 अक्टूबर को यहाँ पर मुंबई में 14 अक्टूबर 2022 मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में हमारा एक फंक्शन है, सोल्ड गोल्ड अवार्ड्स, उसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी, जया जी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जया जी, काफ़ी अच्छी बातें हुई, काफ़ी कुछ जानने मिला आपके बारे में। शो का वक्त थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बिफोर मैं हमारे दूसरे गेस्ट को भी स्क्रीन पर लाऊं, उससे पहले आप एक मैसेज जो हमारे शो को देना चाहेंगी तो क्या देना चाहेंगी? मैं फर्स्टली तो राजू मानवानी सर का काफी काफी थैंकफुल हूँ, जो मुझे इस लेवल पे अपॉर्चुनिटी दी, जो मैं काफी लोगों को एक संदेशा भेज सकूं कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको स्ट्रगल और पेशेंस रखना पड़ेगा। हर खिलाड़ी के अपना तो
आपको अगर सपोर्ट है अपने मम्मी पापा का, आपको अगर भगवान पे भरोसा है, आपको अगर आपकी हिम्मत पे भरोसा है, तो आप काफी अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी मेहनत पे फोकस करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान, अपना जो भी ड्रिल्स वगैरह है उस पर ध्यान दो, और अच्छा स्ट्रगल तब तक आप स्ट्रगल पेशेंस नहीं करोगे तब तक आपको बैठे बिठाए कुछ भी काम चीजें हासिल इजीली नहीं हो सकती, क्योंकि चीजों को हासिल करने के लिए आपको खुद उनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी चीजें हासिल हो सकेगी। और अपने मम्मी पापा का बस सपोर्ट हो, भगवान का आशीर्वाद हो, तो काफी चीजें डिफिकल्ट से भी इजी हो जाती है, क्योंकि चीजों को डिफिकल्ट से इजी बनाना अपना काम है। तो बस यही होना चाहूंगी कि बस पेशेंस रखो, स्ट्रगल करो, और बस अपने मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स लेते रहो, अपने भगवान पे ध्यान दो बस। और काफी थैंकफुल राजू मनवानी सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जया जी। मैं हमारे टेक्निकल डायरेक्टर प्रदीप जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे जितने गेस्ट हों उन्हें सबको स्क्रीन पर ले आएं प्लीज। Okay, so we have our guest Pallavi Srivastava. Okay, लियो क्लब ऑफ मुंबई सोल की प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं युतिका। युतिका, आपने शो देखा, दो बहुत ही ज़्यादा यंग फीमेल्स जिन्होंने अलग अलग जॉनर में काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है। कैसा लगा आपको शो और आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली आप दोनों का बहुत कोटि कोटि आपका सबसे बड़ा वेलकम यहाँ पे विश्वास निधि सेवा संगम में। एंड मैं एज अ यूथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत इंस्पायर हुए हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट पल्लवी मैम का, जिस तरीके से उन्होंने हमें न्यूट्रिशन के बारे में समझाया और कैसे हर एक खाना एक्चुअली हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करता है और हर खाने को कैसे खाना चाहिए, कैसे, क्योंकि खाना एक ना हमारा रिलेशनशिप बन जाता है खाने के साथ। जो आप खाना खाते हैं आप पॉजिटिव रह पाते हो, और कैसे हमारा फिटनेस में हमारा ध्यान रहेगा तभी हम पॉजिटिव रह पाएंगे। तो मैम मैंने आपके 2-3 इंटरव्यूज भी देखे थे, देन आई रियली लव कि आप हर एक चीज में ना आपका एक बहुत कॉमन है कि आप इम्यूनिटी को हमेशा बहुत फोकस रखते हैं वो चीज को। तो दैट इज व्हाट इवन दैट इज लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी एज वेल। And Jaya ma'am, thank you so much for giving the inspiration to the youth. Very honestly, वेरी ऑनेस्टली जैसे हम यूथ स्ट्रगल करते हैं, बट हमारे में पेशेंस नहीं होता है। हमें जैसे आज स्ट्रगल कर रहे हैं, कल हमें उस चीज का एडवांटेज या कुछ बेनिफिट चाहिए रहता है। तो वो चीज हमारे में, ये चीज हमें खुद सीखना बहुत जरूरी है कि पेशेंस रखो। स्ट्रगल तो कर रहे हैं बट पेशेंस रखना जरूरी है। तो थैंक यू वो हमें याद दिलाने के लिए। एंड यस, आप IPL में आप आगे आओगे एंड हम वी आर एक्साइटेड टू सी यू ओवर देयर। यस, थैंक यू सो मच। Oh well, thank you. 500, before getting to our guests, मैं definitely ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा शो जो आता है जिस पर इतने सारे लोग आते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मुझे लगता है कि पीछे जो बैकग्राउंड में सपोर्ट होता है उस शो का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आज ये VSS का शो 571st एपिसोड अपना सेलिब्रेट कर रहा है। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय थैंकिंग द स्पॉन्सर्स, प्रॉपर्टी एंथम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विश्व सिंधी सेवा संगम, ग्रीन एक्सएम, लायन लता अफ्तानी मैम फ्रॉम दुबई एंड खानवेल रिसोर्ट सिलवासा। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, एंड आई बिलीव यू शुड continue and we expect you to continue your support at this particular show, and let us bring such amazing people on the show and give a lot of inspiration out to the society. Well, finally coming to the show, coming to the guests, जया जी आपसे शुरुआत करूंगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जानकर। खुद भी थोड़ा बहुत क्रिकेट में एक्सपीरियंस रखता हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ जो आपके इमोशंस हैं और आपने किस तरीके से स्ट्रगल करके आगे चीज़ें अचीव करी होंगी। आपको बहुत बहुत ज़्यादा विशेज़ मेरी तरफ से और हमारी पूरी VSS की टीम की तरफ से। और कोशिश करूँगा कि जब भी अगर मौका मिल पाए और आप अगर किसी भी आगे लेवल पर खेल पाएँ तो मैच देख सकूँ, अटेंड कर सकूँ, बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द शो। And coming on to our next guest, Pallavi, I think it was a fabulous input that you gave to all our viewers today. बहुत सारी चीजें सीखने मिली। Nutrition in itself is, I think, one of those mazes which you can't ever solve, क्योंकि सारे bodies अलग हैं, सारे लोग अलग हैं, immunities अलग हैं, अलग-अलग चीजें हैं। But people like you who are actually taking up the step and resolving a lot of
problems that people are having with their lifestyles today is truly a profession which is very, very giving towards the society. So I believe, I would like to just wish you all the best. Loads and loads of wishes to Q Slim Studio. I believe a lot of people should, who listen to this particular interview, should go get themselves checked and try and understand their body better and be people who are actually living much, much, much more healthy in a way. So thank you so much to both our guests today. Thank you. It was a pleasure. I would just like to say thank you again to the VSS show and everybody back, in the background also working. It was such a fun talk, and I was hearing Jaya ji also, such an inspiration, and congratulations and all the best to you as well. So thank you so much. Thank you, everyone. Well, ladies and gentlemen, that was our 551st episode. My first episode as an anchor on the VSS show. I think I enjoyed my time. It was a fabulous show. बहुत सारी चीजें सीखने मिली हमारे दोनों श्रोतागणों से जिन्होंने मैं आज ज्वाइन किया था. A lot of viewers who have been watching this particular show, I think, must have now gotten used to how beautifully this show has been conducted and कितने ज़्यादा varied personalities को हमें जानने का मौका मिलता है. I would like to thank Lion Dr. Raju Manwani for giving me this opportunity to anchor this particular show. Finally, moving on to our next episode that we are going to be having tomorrow, that is 8 to 9 p.m. We are having two guests, out of which one is an IPL Gujarat team player. So I think everyone would be excited to watch him. And also the second one that we have is Manohar sir, who's coming on and who's also going to be giving a lot of insights to a lot of people who are going to be able to watch the show tomorrow. So please don't miss this show tomorrow. And if you've missed today's show, please go on to the YouTube channel of Lion Dr. Raju Manwani, and you can actually subscribe to the YouTube channel and watch the show so that you get to learn a lot more about nutrition as well as how to become a successful cricketer. Well, until next time, when I get the opportunity, it was beautiful to be with all of you at VSS show. Until next time, it's good night and goodbye.